आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से स्टार्ट करने वाले हैं। वन बाय वन बाकी सारे जो भी एएस हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बैंकिंग कंपनी, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बोनस वाले जो चैप्टर्स हैं उन्हें भी वन बाय वन कवर करेंगे। पहला टॉपिक आज हमारा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चैप्टर का नाम डाल लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट और लिखना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। ये ग्रुप 2 की क्लास है। कंपनी अकाउंट्स ग्रुप 2 में ही है ना, मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन यही आई है। Cash flow statement is nothing more than a detailed view of the cash book of a business enterprise. A cash flow statement is divided into three parts, which helps a business organization in taking several critical decisions. In taking several critical business decisions. Number one, operating activities. It records flow of cash from day-to-day business activities along with income tax payment. Number two, investing activities. It records flow of cash from purchases and sales of non-current assets. Non-current assets here includes non-current investments also. Financing activities. It records flow of cash from issue of shares, debentures, loans, overdrafts, etc., and their repayments, along with applicable
interests एंड डिविडेंड्स। जब नोट हो जाए तो बताइएगा, फिर नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। आइए पंकज बाबू, स्वागत है आपका। बाकी लोगों का ये नोट हो जाएगा तो यस बोलेंगे, फिर आगे चलेंगे। ये लोन के बाद क्या लिखा है? ओवरड्राफ्ट ओडी, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ओडी। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दोगे 2 सेकंड के लिए? 2 सेकंड का। फ्रेंड्स यस बोलेंगे सभी लोग। हो गया नोट? यस सर। यस सर। उसके बाद देयर कैन बी 2 methods for preparing a cash flow statement. Number 1, direct method. Number 2, indirect method. Note: first of all, we will discuss about the 3 activities in which a cash flow statement, मैं abbreviated word use कर रहा हूं अब, CFS, about the 3 activities in which a CFS, cash flow statement, is divided. Then later on we will come to these methods. उसके बाद हम मेथड्स पर आएंगे। तो मेरे साथ साथ लिखिएगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, record the following in the books of X Limited and also prepare cash book. Number 1,
land and building purchased for rupees 10 lakhs and payment made in cash. Trademark purchased rupees 1 lakh and payment made through bank. Non-current investments purchased in cash for rupees 2 lakhs. Sale of land and building rupees 15 lakh and payment received in bank. Sold goodwill for rupees 10 lakhs and received cash. Non-current investments sold for rupees 2,20,000 received cash. Received cash. Point number 7. Point number 7. Interest received on non-current investments rupees 10,000 received in bank. Number 8, dividend received 12,000 and rent received 15,000 in cash. नोट करिए फटाफट से, 1 मिनट के अंदर नोट होना चाहिए. फिर से रिपीट कर देता हूं, कभी किसी की डिमांड आ जाए. रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड आल्सो प्रिपेयर कैश बुक. लैंड एंड बिल्डिंग परचेज फॉर 10 lakh, पेमेंट मेड इन कैश. Trademark purchased 1 lakh, payment made through bank. Non-current investments purchased cash 2 lakhs. Sale of land and building 15 lakh received in bank. Sold goodwill for 10 lakh received cash. Non-current investments sold for 2,20,000 received in cash. Interest received on non-current investment 10,000 received in bank. Dividend received 12,000 and rent received 15,000 in cash. नोट हो गया? यस बोलेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे. Yes, sir. Everyone else? नोट हो गया सभी का? सभी लोग यस बोला कीजिए. यस सर.
या 2 लोगों ने यस बोले सिर्फ, बाकी लोग? 3 ही तो है सर हम। एडमी वाले। यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन। जर्नल एंट्री पास करेंगे या डायरेक्ट कैश बुक बना सकते हैं आप लोग, बताइए। डायरेक्ट कैश बुक बनाना चाहिए आपको, तो हम डायरेक्ट कैश बुक बनाएंगे। जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैश बुक बनाएंगे। डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे हम लोग। आपको याद हो 11th क्लास में बनाया करते थे हम लोग डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें 2 कॉलम होते थे, कैश का और बैंक का, जिसमें 2 कॉलम होते थे, कैश का और बैंक का। तो यहाँ पर कैश, यहाँ पर बैंक, यहाँ पर कैश, यहाँ पर बैंक। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। कैश बुक क्या होती है? कैश बुक कैश और बैंक अकाउंट दोनों का एक मिक्सअप होती है, इसीलिए इसे जर्नलाइज्ड लेजर भी कहा जाता है। ओके, पहली एंट्री क्या थी? पहली ट्रांजैक्शन थी लैंड एंड बिल्डिंग परचेज फॉर 10 लाख एंड पेमेंट मेड इन कैश। बताइए कहां लिखूं मैं इसको? बताइए कहां लिखूं मैं इसको? कैश बुक में कहां लिखूं मैं इसको? अरे बताइए भाई। बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कैश कॉलम के नीचे 10 लाख रुपीस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ट्रेडमार्क परचेज पेमेंट मेड थ्रू बैंक, यहां लिखेंगे बाय ट्रेडमार्क, और पेमेंट बैंक के थ्रू है तो बैंक कॉलम में आएगा क्रेडिट 1 लाख रुपीस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड इन कैश फॉर 2 लाख बाय नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स रुपीज 2 लाख। Sale of land and building 15 lakh, payment received in bank, bank account debit to land and building 15 lakh. Next transaction sold goodwill for 10 lakh, received cash, cash account debit to goodwill 10 lakh rupees. Non-current investment sold for 2,20,000. Received in cash, cash account debit to non-current investments 2,20,000. Interest received on non-current investment 10,000, received in bank, bank account debit to interest on non-current investments 20,000. 20,000 है कितना है? 10,000, सॉरी 10,000। उसके बाद डिविडेंड रिसीव 12,000 इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड 12,000। रेंट रिसीव्ड इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड 15,000। बैलेंस लगाइए जरा, बैलेंस लगाइए जरा। कैश में हाँ जी 45,000 नहीं, कुछ और आएगा यार, 47,000 आएगा।
47,000। बैंक का बताइए जरा। 14 डिविडेंड lakh। सर 10,000 रुपये था। डिविडेंड 12 है। डिविडेंड 12 है भाई। कोई बात 47। बैंक में आ जाएगा 14,10,000। ये हो जाएगा 12,47,000। 12,47,000। 15,10,000। 15,10,000। कैश बुक में कैश और बैंक अकाउंट की डिटेल्स आती है। कितना कैश डेबिट हुआ, कितना बैंक डेबिट हुआ, कितना कैश क्रेडिट हुआ, कितना बैंक क्रेडिट हुआ, और लास्ट में बैलेंसेस लिखे होते हैं। आपने जब 11th क्लास पढ़ी होगी तो वहां पर एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होती थी, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। ये दो कॉलम और आ जाते थे डेबिट और क्रेडिट साइड। यहाँ पर वो नहीं आएंगे। हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक, इनसे मतलब होगा। एक दो आइटम और हैं जिनसे हम कंसर्न होंगे, लेकिन एज फार एज कैश बुक इज कंसर्न हमें सिर्फ कैश और बैंक कॉलम के बारे में बात करनी है, डिस्काउंट के बारे में बात नहीं करनी है। क्यों सर? क्योंकि डिस्काउंट एक नॉन कैश आइटम होता है। नॉन कैश आइटम की चर्चा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है। ओके, उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसी कैश बुक को, जो आपके सामने प्रेजेंटेड है, इसी कैश बुक को एक स्टेटमेंट के रूप में प्रेजेंट करना है, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे? इसी को जस्ट एक अकाउंट की जगह एक स्टेटमेंट बना देना है। तो हम ऐसे लिखेंगे, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग activities. Cash flows from investing activities. Particulars amount in rupees. Proceeds from sale of tangible fixed assets. Proceeds from sale of intangible fixed assets. Proceeds from sale of non-current investments. Interest received, dividend received, rent received, purchase of tangible fixed assets, purchase of intangible fixed assets, purchase of non-current investments. और जो हमने बैलेंस लिखा था वहां पर, उसको ऐसे लिखेंगे। जो कैश बुक में बैलेंस आता है उसे स्टेटमेंट में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, नेट कैश जनरेटेड यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
दैट्स इट, नोट हो गया। फिर मैं समझाता हूं आपको, ये फटाफट से नोट करके यस बोलिए। अगर नीचे कर दूं हाँ जी, यस सर हो गया। तो आप अपनी कैश बुक देखेंगे जरा। कैश बुक में जो भी हमने सेल किया है, चाहे वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट हो, लैंड एंड बिल्डिंग, चाहे वो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट हो, ट्रेडमार्क, या फिर कोई शेयर खरीद लिए हैं आपने, एग्जांपल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो, आपने उसको यहां पर स्टेटमेंट के अंदर ऐसे लिख दिया है, सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। कौन सी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट हमने सेल की थी, सॉरी परचेज की बात कर रहे हैं, कौन सी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट हमने परचेज की थी, यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहां पर लिखेंगे परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट लिखेंगे, नीचे उसका नाम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, और अमाउंट में लिखेंगे 10 लाख रुपीस। उसके बाद परचेज ऑफ ट्रेडमार्क 1 लाख रुपीस, परचेज ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इसके नीचे लिखेंगे ट्रेडमार्क 1 लाख रुपीस। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीस। उसके बाद जो भी हमने सेल किया था, चाहे वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की सेल हो, चाहे वो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट की सेल हो, चाहे वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल हो, उसे हमने स्टेटमेंट में ऐसे लिख दिया है, सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। आगे दो वर्ड भी लिख दिए हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम। ये जस्ट एज अ ट्रेडिशन लिखे जाते हैं ये दो वर्ड, इनका मतलब सिर्फ इतना ही है, बेचकर जो पैसा आया, पैसे का आना। प्रोसीड्स फ्रॉम का मतलब आना, इनका और कोई रेलिवेंस नहीं है। स्टिल आपको ये एग्जाम में लिखना है, प्रोसीड्स फ्रॉम, इट इज सपोज टू बी बेटर। लैंड एंड बिल्डिंग सेल किया आपने 15 लाख रुपीस में, यहां लिखोगे लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख। गुडविल सेल की 10 लाख रुपीस, यहां लिखोगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स गुडविल 2 लाख रुपीस। फिर प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2,20,000 रुपीज। उसके बाद जो आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया, रेंट रिसीव किया 10, 12, 15, उन्हें सिंपली लिख दोगे यहां पर, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड 10,000 रुपीज, 12,000 रुपीज, 15,000 रुपीज। अब जरा बैलेंस लगाएंगे। तो बैलेंस लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 15 लाख, 2 लाख, 220, 10, 12, 15 इन सभी रिसीट्स को ऐड करना पड़ेगा, और उसमें से परचेज करते टाइम जो कैश आपके पास से चला गया उन्हें आपको लेस करना पड़ेगा, 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख। तो मैं आपको बता दूं, नेगेटिव फिगर के लिए हम स्टेटमेंट के अंदर माइनस निशान का यूज नहीं करते हैं, सिंबल का यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम ब्रैकेट लगा देते हैं। ये बात आप अच्छे से जानते भी होंगे। तो हम यहाँ पर 10, 1 और 2 पर ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि ये हमें लेस करना है, ये नेगेटिव फिगर्स हैं। यहां से कैश जाएगा, कैश का नेगेटिव फ्लो होगा, इसीलिए इनको लेस कर देंगे। तो हमारा बैलेंस निकल के क्या आ जाएगा, बैलेंस ये आएगा इन दोनों का टोटल 14,57,000, 14,57,000 ये बैलेंस आ जाएगा आपका। सर हमने ये क्या किया है, मैं अगर आपको बताऊं, हमने जस्ट कैश बुक का जो अकाउंट वाला फॉर्मेट होता है, डेबिट क्रेडिट, उसे
स्टेटमेंट वाले फॉर्मेट में चेंज कर दिया है, उसे स्टेटमेंट वाले फॉर्मेट में चेंज कर दिया है। हम हॉरिजॉन्टली कैश बुक बनाते हैं, कैश बैंक, उसे हमने वर्टिकल फॉर्म दे दी है, वर्टिकल फॉर्म दे दी है। सेल ऊपर, परचेज नीचे, और लास्ट में बैलेंस। मैंने बैलेंस में एक वर्ड लिख रखा है, नेट कैश जनरेटेड और यूज्ड, इन दोनों में से कोई एक वर्ड आएगा। मैं आपको बता दूं, अगर ये फिगर आपकी 14,57,000 पॉजिटिव आती है, मतलब कैश जनरेट हुआ है, तो आप जनरेटेड लिखेंगे। और अगर ये नेगेटिव आती तो इसका मतलब कैश यूज हुआ है, तब आप यूज्ड वर्ड लिखते हैं, नेट कैश यूज्ड। यहां पर जनरेटेड था तो जनरेटेड वर्ड आ जाएगा, यूज्ड नहीं आएगा, पॉजिटिव फिगर थी यहां पर इसलिए। ओके सर। सर अब जरा ये तो बता दो, ऐसा करके सर हम... एक सेकंड सर, हाँ जी ये 14,57,000 कैसे आया? भाई, आप इसको करो ना, बैलेंस करो आप इसको, 15 सर ये to 7। 657 आ रहा है। ये बैलेंस नहीं आ रहा क्या यहाँ पे? 6,57,000 आ रहा है सर वहाँ। फिर वो उसमें ना अपने गुडविल का अमाउंट 10 लाख की जगह 2 लाख लिख दिया है, तो सेल ऑफ गुडविल में, सेल ऑफ गुडविल में, स्टेटमेंट वाले में सर, सेल ऑफ स्टेटमेंट गुडविल वाले में में 10 लाख आ जाएगा यहाँ पर। सॉरी, वो बार बार स्क्रीन बदलना पड़ता है ना, इस वजह से थोड़ा इशू हो गया। ओके ओके, ये 10 लाख आएगा, फिर 1457 आ जाएगा आपका। ये सेल ऑफ गुडविल में 10 लाख आएगा। थोड़ा सा आप उसी टाइम पर थोड़ा सा बता दिया कीजिए अगर वही कोई... मैं सर, मैं वही सोच रहा था कि ये ओके होगा। ओके, ये स्क्रीन बदलने की वजह से हो जाता है यार, सामने एक स्क्रीन पे रहता नहीं है ना क्वेश्चन। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगा। ये गुडविल 10 लाख आ जाएगी आपकी, फिर आपका ये 1457 हो जाएगा। जनरेटेड यूज करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव फिगर है, अगर ये नेगेटिव फिगर होती तो यूज्ड वर्ड यूज करते हम यहाँ पर। सर हमने क्या हासिल कर लिया ऐसा करके? हमने सिर्फ और सिर्फ कैश बुक को एक दूसरे फॉर्मेट में प्रेजेंट कर दिया, एक दूसरे फॉर्मेट में प्रेजेंट कर दिया। ऐसा करके हमने क्या हासिल कर लिया? तो मैं आपको बता दूं, जो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, अगर आपने देखा हो, इसमें सारे आइटम्स सिर्फ और सिर्फ कौन से थे? ये देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वाले आइटम थे, सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वाले आइटम थे। इट रिकॉर्ड्स फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। इट इंक्लूड्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की परचेज सेल रिकॉर्ड की जाती है। और आप देखेंगे मैंने अपने एग्जाम्पल में लैंड एंड बिल्डिंग, ट्रेडमार्क, गुडविल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सिर्फ टेंजिबल और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को ही लिया था। उसी का एग्जाम्पल का इस्तेमाल करके मैंने कैश बुक बनाई थी, और कैश फ्लो स्टेटमेंट का सिर्फ एक पार्ट बनाया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सर जो हमारी कैश बुक होगी एक्चुअल में, जो किसी कंपनी की कैश बुक होगी, क्या उस कैश बुक के अंदर ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग ये आइटम्स भी शो हो रहे होंगे? यस, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग ये आइटम्स भी शो हो रहे होंगे। तो कैश बुक के अंदर सिर्फ इन्वेस्टिंग आइटम्स नहीं आते हैं, कैश बुक के अंदर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटीज से रिलेटेड आइटम्स क्रेडिट साइड भी आ रहे होंगे, और तीनों एक्टिविटीज से रिलेटेड आइटम्स डेबिट साइड भी आ रहे होंगे। हमें क्या करना पड़ता है? हमें उस कैश बुक में से सिर्फ इन्वेस्टिंग वाले आइटम्स को सेलेक्ट करके अलग से एक सेपरेट स्टेटमेंट में एक सेपरेट जगह लिख लेना है। यानी सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, कैश बुक में तीनों आइटम्स मिक्स होते हैं डेट वाइज। कभी ऑपरेटिंग का आइटम आ रहा है, कभी इन्वेस्टिंग का आइटम आ रहा है, कभी फाइनेंसिंग का आइटम आ रहा है, कभी ऑपरेटिंग आ रहा है, कभी इन्वेस्टिंग, कभी फाइनेंसिंग। हमें उसमें से एक एक करके इन्वेस्टिंग वाले आइटम्स को सेलेक्ट करके यहां पर लिख लेना है एक जगह पर। सर यही काम हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए भी करेंगे।
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाले आइटम्स को वन बाय वन करके एक सेपरेट जगह पर लिख लेंगे और वहां पर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेम काम हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वाले आइटम्स के लिए भी करेंगे, उनको एक एक करके सेलेक्ट करके एक सेपरेट प्लेस पर लिख लेंगे। कंक्लूजन, कैश बुक के अंदर डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी डेट वाइज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग आइटम्स आते रहते हैं। कभी ऑपरेटिंग आइटम आता है, कभी इन्वेस्टिंग, कभी फाइनेंसिंग, कभी ऑपरेटिंग फिर से, कभी फाइनेंसिंग फिर से, कभी इन्वेस्टिंग फिर से। हमारा काम ये होता है कि वहां से सारे इन्वेस्टिंग को सेलेक्ट करके एक जगह पर लिख लेना, सारे फाइनेंसिंग को सेलेक्ट करके एक जगह पर लिख लेना और सारे ऑपरेटिंग आइटम्स को सेलेक्ट करके एक जगह पर लिख लेना। वो ऊपर नीचे होते हैं डेट वाइज, हम उन्हें सेलेक्ट करके एक जगह पर लिख लेते हैं। सर इन्वेस्टिंग आइटम तो आपने बता दिया ये होते हैं, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग आइटम कौन कौन से होते हैं? अभी आपको सिर्फ इतना जानना है, ऑपरेटिंग आइटम्स होते हैं डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में जो कैश का फ्लो होता है, डे टू डे सेल्स पे जो कैश मिलता है, डे टू डे परचेज ऑफ गुड्स से जो कैश जाता है, डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी पेमेंट या रिसीप्ट ऑफ कैश होगी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगी। सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो भी कैश का फ्लो होता है, शेयर लेने से, डिबेंचर लेने से, लोन लेने से, ओवरड्राफ्ट लेने से, या फिर जो भी कैश का नेगेटिव फ्लो होता है इनकी रीपेमेंट पर, अलोंग विद इन पर जो डिविडेंड और इंटरेस्ट दिया जाएगा उसके साथ, वो आइटम्स आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, करा नहीं रहा हूं, सिर्फ ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग का ओवरव्यू दे रहा हूं, मैं आपको करा नहीं रहा हूं। तो सर अगर हम एक लाइन में कहें तो यहां पर कैश बुक में जो डे टू डे एक्टिविटीज के आइटम होते हैं ऑपरेटिंग वाले वो भी आ रहे होते हैं, जो परचेज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वाले आइटम होते हैं वो भी आ रहे होते हैं डेट वाइज, और शेयर डिबेंचर लोन इश्यू करने पर और उनकी रीपेमेंट पर जो कैश फ्लो होता है वो भी शो हो रहा होता है डेट वाइज। हम बस उन्हें सेलेक्ट करके अलग अलग को एक जगह पर लिख लेते हैं, दैट्स इट। आपके एग्जाम्पल में सिर्फ इन्वेस्टिंग का था तो आपने सिर्फ इन्वेस्टिंग को ही एक जगह पर लिख लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको फाइनेंसिंग का कराऊंगा, फाइनेंसिंग की ऐसे ही हम कैश फ्लो बनाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको ऑपरेटिंग का कराऊंगा, ऑपरेटिंग की ही ऐसे ही कैश फ्लो कराएंगे। फिर एक आपको ऐसा एग्जांपल दूंगा मैं जो कैश बुक कंप्लीट होगी जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सभी आइटम्स आ रहे होंगे, उसमें से आप सेलेक्ट करके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अलग अलग बनाओगे। ओके, समझ में आया? तो आगे चलते हैं। सर हाँ जी, नेट कैश यूज्ड इन बताना एक बार, कौन सा कब आता है? देखो आपने जो बेचे फिक्स्ड एसेट्स और इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, इन तीन और तीन 6 आइटम से आपके पास इतना कैश आया और इन 3 आइटम से इतना कैश आपके पास से चला गया। इन दोनों का नेट अगर पॉजिटिव आता है तो हम बोलेंगे कैश जनरेट हुआ है, और इन दोनों का नेट अगर नेगेटिव आता है तो हम बोलेंगे कैश यूज हुआ है। दैट्स इट। यहां पर पॉजिटिव था नेट तो इट मींस कैश जनरेट हुआ है, तो हम जनरेट वर्ड यूज करेंगे। अगर ये नेगेटिव आती फिगर 1457 तो यहाँ पर यूज्ड वर्ड लिखते जनरेटेड की जगह। ओके सर। ओके, आगे चल सकते हैं। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 2, prepare a cash book from the following. Prepare a cash book from the following. Number 1, आज की क्लास बड़ी सिंपल है, बेफिक्र रहिए आप, लेकिन आज की क्लास से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आगे आने वाली क्लासों में आसानी रहेगी। प्रिपेयर अ कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग।
issue of equity shares, rupees 5 lakh. Issue of preference shares, rupees 1 lakh. Premium on issue of equity shares, rupees 20,000. Underwriting commission, underwriting commission on issue of equity shares, rupees 10,000. Issue of 9% debentures, rupees 1 lakh. Bank loan taken, rupees 2 lakh. Increase in bank overdraft, rupees 15,000. Increase in bank overdraft, rupees 15,000. Interest paid on debentures, rupees 9,000. Dividend paid on equity shares, rupees 10,000. Dividend paid on preference shares, rupees 8,000. Repayment of debentures, 9% debentures, rupees 50,000. Redemption of preference share capital, rupees 50,000. Redemption of preference share capital, rupees 50,000, 50,000. Buyback of equity share capital, rupees 40,000. नोट करिए. Last point. Repayment of bank loan, rupees 2 lakh. Repayment of bank loan, rupees 2 lakh. नोट हो जाए तो बताइएगा. Yes, sir.
इसकी कैश बुक प्रिपेयर करेंगे हम। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 5 लाख, कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम अज्यूम कर लेते हैं ये ट्रांजैक्शन बैंक में है, 5 लाख रुपीस, तो बैंक में डाल देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हम अज्यूम कर लेते हैं ट्रांजैक्शन बैंक में है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, हम एज्यूम कर लेते हैं प्रीमियम हमने कैश में रिसीव किया है, तो यहां पर आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैश अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 20,000। अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, हम अज्यूम कर लेते हैं कैश में पे किया, यहां पर लिखेंगे बाय अंडरराइटिंग कमीशन 10,000। अंडरराइटिंग कमीशन पता है सभी को क्या होता है? देखो, शेयर्स को बेचने के लिए, इशू करने के लिए जो एजेंट्स हायर किए जाते हैं किसी भी कंपनी के द्वारा, वो एजेंट्स अपना कमीशन लेते हैं शेयर बेचने के बदले, उसे बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। किसी भी कंपनी को अगर पूरे इंडिया में शेयर इशू करने हैं तो वो बेटर कंट्रोल के लिए हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक एजेंट बिठा देगी, उस एजेंट को बोलते हैं अंडरराइटर। और वो एजेंट शेयर बेचेगा कंपनी के अपने अपने एरिया में, उसके बदले जो कमीशन लेगा वो एजेंट, उसे बोलेंगे अंडरराइटिंग कमीशन। इश्यू ऑफ 9% डिबेंचर्स रुपीज 1 लाख, टू 9% डिबेंचर्स, अज्यूम कर लीजिए कैश में है 1 लाख रुपीज। बैंक लोन टेकन 2 लाख, ये तो बैंक में ही आएगा, कैश मिलेगा ही नहीं, अज्यूम नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 2 लाख रुपीज। उसके बाद इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, आपको सभी को पता होगा जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है उनकी एक सीसी लिमिट होती है, क्रेडिट कार्ड लिमिट, जिसे ओवरड्राफ्ट लिमिट भी बोलते हैं। आपने वो 15,000 और यूज कर ली, इसका मतलब आपने 15,000 रुपीज और रिसीव कर लिए बैंक से ओवरड्राफ्ट के नाम के। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 रुपीज। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 9,000 रुपीज बाय इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, अज्यूम कर लीजिए कैश में पे किया है 9,000 रुपीज। नेक्स्ट, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स 10,000 रुपीज, यहां लिखिए बाय डिविडेंड पेड 10,000 रुपीज, अज्यूम कर लीजिए कैश में पे किया है। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 8,000, बाय डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 8,000। नेक्स्ट आइटम, रीपेमेंट ऑफ 9% डिबेंचर्स 50,000 बाय 9% डिबेंचर्स,
अज्यूम कर लीजिए बैंक से पे किया है 50,000। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 अज्यूम करिए बैंक से। फिर बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, तो यहां जाएगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक 40,000। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 2 लाख रुपीज बाय बैंक लोन टू बैंक 2 लाख रुपीज। बैलेंस बताएंगे मुझे, बैलेंस बताएंगे मुझे। सही लिखा है क्या मैंने? बैलेंस चेक करिए। सही है। 83,475 दोनों साइड यही है। 83,475। इज इट प्रिपेयर्ड? यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। इसी कैश बुक को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट करना है। क्योंकि इस कैश बुक में मैंने सारे आपको फाइनेंसिंग आइटम ही दिए हैं, तो ये सारे आ जाएंगे आपकी स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट का नाम होगा कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। वन बाय वन चलते रहिए। मैं क्या करने वाला हूं, मैं देखिएगा, पहले आपके सामने एक फॉर्मेट बनाऊंगा, उसके बाद कैश बुक पे आऊंगा। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, और एक लाइन छोड़नी है आपको इसके बाद। एक और एक, दो लाइन छोड़ेंगे आप इसके बाद, एक और एक, दो लाइन छोड़ेंगे। फिर लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स। एक लाइन छोड़ेंगे इसके बाद, फिर लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे इंटरेस्ट पेड। उसके बाद लिखेंगे डिविडेंड पेड। ऐसे एरो बनाएंगे डिविडेंड पेड पर। उसके बाद लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ
सर इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग लिखे हैं आप? इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल, 2 लाइन छोड़ेंगे फिर उसके बाद, 2 लाइन छोड़ेंगे फिर उसके बाद फिर लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, फिर लिखेंगे उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, redemption of long term borrowings, फिर उसके बाद लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे आप लोग रिडेम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग के बाद, एक लाइन छोड़ेंगे रिडेम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग के बाद, फिर उसके बाद लिखेंगे डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, दैट्स इट। Decrease in short-term borrowings. That's it. Yes बोलिएगा जब ये लिख दें आप। लिख लिया सर। लिख लिया जी सभी ने? यस सर। वापस आते हैं अपनी कैश बुक पर, 1 बाय 1 आइटम चलते हैं इस बार। आप देखिए, आपने इश्यू किए हैं इक्विटी शेयर्स और 5 लाख रुपीज रिसीव किए हैं, 5 लाख रुपीज रिसीव किए हैं, तो इसके लिए आपकी स्टेटमेंट में एक अलग से हेड है प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, जिसमें आप लिखेंगे फर्स्ट लाइन में इक्विटी शेयर कैपिटल, इनर कॉलम में ही 5 लाख रुपीज लिखेंगे। उसके बाद आते हैं जरा नेक्स्ट आइटम, देखिए कैश बुक में आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, 1 लाख रुपीज रिसीव किए हैं, इसके लिए आपकी स्टेटमेंट में हेड है यही प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट लाइन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इनर कॉलम में 1 लाख रुपीज। उसके बाद आप देखेंगे आपने प्रीमियम रिसीव किया है 20,000 रुपीज का। आप अपना एग्जाम्पल देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ था थर्ड पॉइंट में प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 20,000 रुपीज। तो आपने ये जो प्रीमियम रिसीव किया है 20,000 रुपीज का, इसे आप यहीं पर प्लस करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 रुपीज। उसके बाद आपने 9% डिबेंचर इशू किए हैं 1 लाख रुपीज के, 1 लाख रुपीज के। तो यहां पर आपकी स्टेटमेंट में इसके लिए ये हेड है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, नीचे लिखिए 9% डिबेंचर्स और आउटर कॉलम में लिख देंगे 1 लाख रुपीज। सर इसका डायरेक्ट आउटर कॉलम में क्यों लिख दिया? क्योंकि डिबेंचर इशू करने पर प्रीमियम की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि डिबेंचर 2 टाइप्स के हैं, जैसे इक्विटी शेयर थे, प्रेफरेंस शेयर थे, 2 टाइप के शेयर थे। डिबेंचर सिर्फ एक ही टाइप का है, 9% डिबेंचर 1 लाख रुपीज। और इस पर आपने क्वेश्चन में देखा कोई और प्रीमियम वगैरह या अंडरराइटिंग कमीशन की कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, इसलिए हमने 1 लाख को डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद बैंक लोन 2 लाख रुपीज, इसके लिए आपके पास ये हेड है प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोविंग, इसमें लिखेंगे बैंक लोन, आउटर कॉलम में डायरेक्ट 2 लाख रुपीज। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर आपको पता हो बैंक ओडी इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक से जो आप ओवरड्राफ्ट लेते हैं विद इन अ ईयर आपको रीपेमेंट करनी होती है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसके लिए आपके पास ये कॉलम है इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यहां पर लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक से ओडी ले लिया आपने 15,000 और एक्स्ट्रा,
उसके बाद अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स, ये जो कमीशन आपने पे किया है इक्विटी शेयर्स इशू करने पर, इसे आप यहीं पर ही लेस कर देंगे, माइनस अंडरराइटिंग कमीशन 10,000 रुपीज। उसके बाद बाय इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स 9,000 रुपीज। इसके लिए आपके पास हेड कहां पर है? इसके लिए आपके पास ये रहा हेड, इंटरेस्ट पेड ऑन 9% डिबेंचर्स, ऑन 9% डिबेंचर्स 9,000 रुपीज। ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि पेमेंट है, कैश की नेगेटिव फ्लो होगी, बाहर जाएगा कैश, ब्रैकेट लगाएंगे 9,000। बाय डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स 10,000 रुपीज। इसके लिए हेड कहाँ है आपके पास? ये रहा, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स 10,000 रुपीज। उसके बाद डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 8,000 रुपीज। इन दोनों का टोटल बाहर लगा दीजिए, 18,000 नेगेटिव फिगर, क्योंकि पेमेंट है, कैश फ्लो होगा बाहर। 9% डिबेंचर्स की रिडेम्पशन, जो डिबेंचर इशू करके 1 लाख रुपए उधार लिए थे ये वाले, इसमें से 15,000 रीपे कर रहे हो, इसके लिए कौन सा हेड है आपके पास? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 9% भी लिखिएगा इसके आगे, रिडेम्पशन ऑफ 9% डिबेंचर्स 50,000 ब्रैकेट लगा करके। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के जो 1 लाख रुपए लिए थे इशू करके, उसमें से शेयर होल्डर्स को 50,000 वापस कर रहे हो। रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल पहली लाइन में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल बाय बैक कर रहे हो, बाय बैक का मतलब होता है शेयर कैपिटल पे कर देना 40,000। रिडेम्पशन ऑफ सेकेंड लाइन में लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000, और इन दोनों का टोटल 90,000 बाहर लिख देंगे, 90,000 ब्रैकेट लगा करके। नेक्स्ट आइटम, बैंक लोन रीपे कर दिया आपने 2 लाख रुपीज का, इसके लिए ये रहा हेड आपके पास, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग। नीचे जो लाइन छोड़ी है उसमें लिखेंगे बैंक लोन नेगेटिव 2 लाख ब्रैकेट लगा करके, मतलब। और जो बैलेंस बचा है आपका, जो बैलेंस बचा है आपका, डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोविंग कुछ है ही नहीं, खाली छोड़ देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट में डिक्रीज हुआ ही नहीं, शॉर्ट टर्म बोरोविंग को डिक्रीज नहीं है, खाली छोड़ देंगे इसको। और बैलेंस बताएंगे, बैलेंस बताएंगे। एक बार ये लिख लीजिएगा पहले, ये इश्यू ऑफ शेयर में नेट फिगर क्या आएगी बाहर, ये भी लिख लीजिएगा। 5 लाख प्लस 20, 520 माइनस 10 कितना हो गया? 5, 10 और 1, 6 लाख 10,000, ये भी लिख लीजिएगा पहले, उसके बाद बैलेंसिंग कीजिएगा। अब बैलेंसिंग कीजिएगा आप। सर 5,18,000। बच्चे को चुप करो भाई। जनरेटेड और यूज्ड दोबारा पूछा था मुझसे, वो बताएंगी जिन्होंने जनरेटेड और यूज दोबारा पूछा था, आप बताएंगी। नेट कैश जनरेटेड, नेट कैश जनरेटेड क्योंकि पॉजिटिव फिगर है, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव फिगर है, इसलिए जनरेटेड लिखा है। 5,58,000। हमने क्या किया है, हमने चार्जर ऑफ,
हमने जो भी हमारी कैश बुक के अंदर फाइनेंसिंग वाले आइटम्स शो हो रहे थे, यानी कि शेयर, डिबेंचर्स, लोन को इशू करना और शेयर, डिबेंचर, लोन की रीपेमेंट, रिडेम्पशन, अलोंग विद इन पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट और डिविडेंड, जितने भी ये आपके फाइनेंसिंग रिलेटेड आइटम्स थे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिलेटेड आइटम्स को हमने कैश बुक में से वन बाय वन सेलेक्ट करके एक वर्टिकल स्टेटमेंट की फॉर्म में रिकॉर्ड कर दिया है, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सारे ही आइटम्स हमारे फाइनेंसिंग के थे, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि हम रेपिटिशन ऑफ वर्क कर रहे हैं, वही काम दोबारा कर रहे हैं। जो हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है उसे वर्टिकल लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब आप कंबाइंड कैश बुक करोगे तीनों आइटम्स की, तब आपको पता चलेगा कि ये रेपिटिशन ऑफ वर्क नहीं है। हमें तब सेलेक्ट करना पड़ेगा वन बाय वन और एक एक करके उसे, हर आइटम को उसकी सही जगह पहुंचाना पड़ेगा। ऑपरेटिंग वाले को ऑपरेटिंग में, फाइनेंसिंग वाले को फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग वाले को इन्वेस्टिंग में। तो सर आप ऐसा क्यों नहीं कराते कि एक एग्जाम्पल बड़ा वाला ही दे दीजिए पहले, मिक्स, उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें हम सेलेक्ट भी करना सीख जाएंगे और वन बाय वन उसकी सही जगह पर भी डाल देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की फॉर्मेटिंग भी नहीं पता अच्छे से। तो वन बाय वन हम फॉर्मेटिंग सीख लेंगे, उसके बाद हम वो बड़ा वाला एग्जाम्पल करने की पोजीशन में आएंगे। ओके सर, तो जरा देखिए अब आप, हमें ये हेड्स बनाने होते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, और जो भी शेयर इश्यू हो रहे होते हैं अलोंग विद देयर प्रीमियम एंड अंडरराइटिंग कमीशन की एडजस्टमेंट, वो यहां पर आ जाएगा। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर भी कोई एसपीआर होता, सिक्योरिटी प्रीमियम होता, वहां यहां प्लस कर देते, और अंडरराइटिंग कमीशन होता तो लेस कर देते। उसके बाद नेट फिगर इनकी बाहर आउटर कॉलम में लिखते हैं हम। फिर नेक्स्ट हेड हम बनाते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इसमें जो भी डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं 9%, 10%, 12%, वो सारे इनर कॉलम में लिख के टोटल कर दोगे बाहर। प्रीमियम क्योंकि एडजस्टमेंट है वो भी कर दोगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डिबेंचर था तो हमने डायरेक्ट इसे आउटर कॉलम में लिख दिया। फिर अगला हेड आप बनाएंगे प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। एक ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी हमारी, बैंक लोन, इसीलिए उसे डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया 2 लाख रुपीज। फिर नेक्स्ट हेड आप बनाएंगे इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000। फिर नेक्स्ट हेड आप बनाएंगे इंटरेस्ट जो भी आपने पे किया है, सिर्फ एक ही इंटरेस्ट था आपके एग्जांपल में 9% डिबेंचर्स पर, तो यहां पर सिर्फ एक ही आइटम आ रहा है इंटरेस्ट पेड ऑन 9% डिबेंचर्स। अदरवाइज अगर 12% डिबेंचर्स होते उन पर भी इंटरेस्ट आता, वो आप अलग से लिखते इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिबेंचर्स। उसके बाद आप हेड बनाएंगे डिविडेंड पेड, और जो भी आपने डिविडेंड पे किया है इक्विटी प्रेफरेंस दोनों शेयर्स पर, उन दोनों का टोटल करके फिर आउटर कॉलम में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हेड आप बनाएंगे रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल, जो भी इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने वापस कर दी शेयर होल्डर्स को, उन दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हेड आप बनाएंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जितने भी डिबेंचर्स रिडीम करेंगे उनका टोटल करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। यहां पर एक ही डिबेंचर था इसीलिए उसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया 50,000। रिडेम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग, जितनी भी आपने लॉन्ग टर्म बोरोविंग ली थी उसमें से जो आप रीपेमेंट कर रहे हो वो यहां पर आएगी। आपने ऊपर बैंक लोन लिया था 2 लाख रुपए का, जिसको आप पूरा का पूरा वापस कर रहे हो, वो यहां पे आ जाएगा रिडेम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग। फिर लास्ट में डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोविंग, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आपने रीपे कर दिया है वो आ जाएगा यहां पर, आपके क्वेश्चन में था ही नहीं तो आपने खाली छोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपको टोटल करके लिखना है नेट कैश जनरेटेड या फिर यूज्ड, जो भी आपका आएगा। तो आपको कितने हेड्स बनाने हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, हेडिंग वाइज प्रेजेंटेशन करनी है। यहां पर अगर आप कैश बुक में देखोगे तो आइटम वाइज प्रेजेंटेशन हो रही है। इक्विटी शेयर यहां पड़ा है, इसका कमीशन यहां पड़ा है, इसका प्रीमियम यहां पड़ा है। क्यों? क्योंकि हम डेट वाइज एंट्री करते जा रहे हैं। डिबेंचर का इश्यू यहां पर है, इसका इंटरेस्ट यहां पड़ा हुआ है। तो हम अगर इसे समराइज करना है, एक जगह लिखना है, तो हम बेटर प्रेजेंटेशन करेंगे और हेड वाइज
आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे, हेडिंग बना लेंगे सबकी। कौन कौन सी हेडिंग बनानी है हमको? प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, इश्यू ऑफ नहीं आएगा, इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोविंग, फिर उसके बाद इन पर जो आप इंटरेस्ट और डिविडेंड पे कर दोगे वो, फिर इन सभी की रीपेमेंट। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर था, उसका रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर था, इसका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोविंग था, इसका रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग। इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोविंग था, इसका डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोविंग। इनको जब आप पे कर दोगे, ये हेड्स बनाने और इन हेड्स के अंदर रिकॉर्डिंग करनी है आपको, जो भी रिकॉर्डिंग करनी है। तो सर कैश बुक से एक मामले में कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए भी डिफरेंट होती है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेटर प्रेजेंटेशन होती है, हेड वाइज प्रेजेंटेशन होती है, और एक आइटम से रिलेटेड सारी चीजें एक जगह पर लिखी होती हैं। जैसे इक्विटी शेयर था, कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसके सभी आइटम्स एक जगह लिखे हुए हैं, 5 लाख फेस वैल्यू, 20,000 प्रीमियम और अंडरराइटिंग कमीशन 10,000। तो आपको नेट पता चल गया 5,10,000 आपने नेट रिसीव किया इक्विटी शेयर कैपिटल से, जबकि कैश बुक में ये अलग अलग पड़ी हुई हैं चीजें। 5 लाख यहाँ पड़ा हुआ है, इसका प्रीमियम यहाँ है, अंडरराइटिंग कमीशन यहाँ है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको एक बेटर प्रेजेंटेशन भी देती है। ओके सर, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए जरा। हाँ जी, कोई डाउट? हो गया? यस सर। ओके, तो जरा जो भी हमने आज लिखा उस पे एक बार शुरू से नजर डालते हैं। मैंने आपको बताया कैश बुक कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ डिटेल्ड व्यू ऑफ द कैश बुक ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। कैश बुक की एक बेटर प्रेजेंटेशन है, एक डिटेल्ड व्यू है, जो अभी आपने देखा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कैश बुक में जितने भी आइटम्स लिखे होते हैं वो सभी से रिलेटेड होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, उनको डे वाइज लिखा होता है कैश बुक में। तो हम उनको एक एक करके सेलेक्ट करते हैं और उसकी सही जगह पहुंचा देते हैं। ऑपरेटिंग आइटम को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, इन्वेस्टिंग आइटम को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, और फाइनेंसिंग आइटम को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पहुंचा देते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में किन आइटम्स को डालते हैं हम? डे टू डे रिलेटेड, जो अभी हमने देखा ही नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में किन आइटम्स को डालते हैं हम? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल इंटेंजिबल एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल इंटेंजिबल एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और यहां से आपको जो इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट मिलता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो आपने खरीदी है, इन्वेस्टिंग में उसे डाला है, उस पर आपको डिविडेंड मिलेगा, रेंट भी मिल सकता है, तो वो भी आप इन्वेस्टिंग में ही रिकॉर्ड करेंगे। जो आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज की है उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिल सकता है, वो भी आप इन्वेस्टिंग में ही रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड उसके रिलेटेड आइटम्स भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही आएंगे। ओके सर, फिर हमने देखा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या जाता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाता है उधार लेना और उधार देना, वापस चुका देना, उधार लेना और उसे वापस चुका देना। वापस चुकाते टाइम उधार पर ब्याज और डिविडेंड भी चुकाएंगे आप। यानी कि अगर आपने शेयर्स के रूप में उधार ली है, शेयर कैपिटल भी एक उधारी होती है कंपनी के ऊपर, याद रखिएगा आप, वो भी वापस करनी होती है शेयर होल्डर्स को। डिवेंचर्स भी एक उधार होती है, लोन भी एक उधार होती है, ओवरड्राफ्ट भी एक उधार होती है। तो इन सभी उधार पैसे को रिसीव करना और इनकी रीपेमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये आएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ओके सर, तो जरा मेरे साथ एक बार 1 मिनट के अंदर अगर मैं आपसे कहूं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, अगर मैं 1 मिनट के अंदर कहूं तो आप बोलेंगे फटाफट से एक लाइन के अंदर, आप बोलेंगे प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट,
टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, और बीच में इन पर इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंट रिसीव्ड। सर क्या हमें एग्जाम में ये बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है या हम ऊपर नीचे कर सकते हैं? आप हेड्स को ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हेड्स को ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन अगर आप सेल को पहले लिखते हो और परचेज को बाद में लिखते हो तो इट इज सपोज टू बी अ बेटर प्रेजेंटेशन, क्योंकि जो प्लस आइटम्स है वो पहले दिखते हैं और माइनस आइटम्स बाद में दिखते हैं। अगर आप परचेज को ही पहले लिख दोगे तो माइनस आइटम्स पहले दिखने लगेंगे। जो भी रीडर ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा उसे पहले ये दिखेगा जो कैश जा रहा है, उसके पास नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा कि कैश बहुत जा रहा है, 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख। उसके बाद उसे पता चलेगा कैश आ क्या रहा है। हाँ, नेट फिगर सेम रहेगी, नो इशू, पर स्टिल एग्जाम में आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए जो सामने लिखा हुआ है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी बिल्कुल यही बात लगेगी, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं पर पहले पैसा रिसीव कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, पॉजिटिव फिगर ज्यादा अच्छी रहेंगी, उसके बाद नेगेटिव फिगर लिखना ज्यादा सही रहेगा। ओके Yes, sir. ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। एक 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं? यस सर। 13:28 पर मिलते हैं, एक 5 मिनट का ब्रेक है। Okay, sir. आ जाइए, Yes, आ sir. जाइए, और भी बोलिए। बाकी 2 लोग और यस बोलिए। यस सर। Yes, sir. अटेंडेंस की तरह तो नहीं हो रहा है, एक ही आवाज दोबारा आ रही है ऐसा लग रहा है। सर एक लड़का एक लड़की की आवाज आ रही करेंगे मेरे साथ साथ। इलेवेंथ क्लास में डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ते थे, याद है?
Yes, sir. आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में उस डेप्रिसिएशन के कुछ प्रोविजंस की काफी जरूरत पड़ेगी। क्यों सर? आप देखिए जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आप रिकॉर्ड करते हैं अपने फिक्स्ड एसेट्स को, जो टेंजिबल होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं, बिल्डिंग, लैंड, ट्रेडमार्क, इन सबको रिकॉर्ड करते हैं। तो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, इन सब पर डेप्रिसिएशन भी लगता है, आपको पता होगा अच्छे से। तो क्वेश्चन जो आपका आता है उसमें डेप्रिसिएशन की कुछ चर्चा मिक्स होती है, तो आपको डेप्रिसिएशन के प्रोविजन भी अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को पूरे तरीके से बना पाएंगे। तो मैंने आपको पहले इन्वेस्टिंग समझाया, फाइनेंसिंग समझाया, अब इन्वेस्टिंग को थोड़ा सा अगले लेवल पर ले जा रहा हूं। उसके बाद कल इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर ऑपरेटिंग की तरफ चलेंगे। लिखिए जरा, डेप्रिसिएशन इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डेप्रिसिएशन का क्या रोल है? पहले मुझे एंट्रीज बताएंगे। एंट्रीज, अगर कोई फिक्स्ड एसेट आप परचेज करते हैं उसकी क्या एंट्री करते हैं, फटाफट से बताएंगे। फिक्स्ड एसेट परचेज करने की क्या एंट्री करते हैं? डर रहे हो क्या? कहीं गलत ना हो जाए, कोशिश करो, कोई बात नहीं, डर दूर हो जाएगा अगर डर भी रहे हो तो। पंकज जी बताएंगे, फिक्स्ड एसेट परचेज करने पर क्या एंट्री होती है? फिक्स्ड एसेट्स टू कैश और बैंक। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। वेरी गुड। आसान सवाल का आंसर नहीं देना चाहते हो क्या? ये तो बच्चों वाली चीज है। मैं पूछता हूँ इसलिए बता दिया करो भाई, कोई बात नहीं, थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है आपकी, और कुछ नहीं। ऑन चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, जब हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तब क्या एंट्री करते हैं? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। यही तो आपकी गलती है, यही तो कंसेप्ट वीक है आपका। बस एक केस याद कर रखा है, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, दूसरा केस याद ही नहीं है 11th में पढ़ा हुआ, क्योंकि टीचर ने अच्छे से कराया नहीं था वहीं पर आपको। भाई जैसे ही मैं आपसे पूछूं ऑन चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, आपको पूछना चाहिए केस कौन सा है। दो केस हो Yes, sir. सकते हैं। यस, व्हेन, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, WH। नहीं वो तो मेथड है, वैल्यू कैलकुलेशन के लिए यस सर, बता रहा हूं। यस सर, मैं एंट्री की बात कर रहा हूँ, वैल्यू कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं एंट्री की बात कर रहा हूँ। यस सर। When provision for depreciation is Depreciation. maintained, और दूसरा केस होता है when provision for depreciation is not maintained. Not maintained. Yes sir. जो आप एंट्री बता रहे हो वो ये सेकंड वाले केस की है, when provision for depreciation is not maintained। तो उस केस में हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, सीधा फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं, सीधा फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। लेकिन कई बार कंपनी ये चाहती है कि जो उसकी फिक्स्ड एसेट की परचेज वैल्यू है उसे रिड्यूस ना किया जाए, एज इट इज जितने का खरीदा है फिक्स्ड एसेट उतनी ही वैल्यू बैलेंस शीट में शो होती रहे, ताकि यूजर्स, रीडर्स ऑफ बैलेंस शीट को ये भी पता रहे कि ये बैलेंस शीट की कॉस्ट क्या थी, कितने में खरीदी गई थी। तो उस केस में हम डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं और फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को रिड्यूस ना करके एक नया अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यस सर। और फिर अपनी बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके से शो करते हैं, फिक्स्ड एसेट लिखते हैं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से लेस करके शो करते हैं, तो कॉस्ट आती रहती है वहां पर, आपकी कॉस्ट Yes. आपको पता चलती रहती है ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी। ठीक है सर,
सर क्या आप हमें पूरा डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा रहे हो या फिर सिर्फ जितना कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए रेलिवेंट है वो पढ़ा रहे हो? तो आप समझदार हैं, आपको पता होगा जितना कैश फ्लो के लिए रेलिवेंट है वही पढ़ा रहा हूं मैं। और ये एक्चुअल में वैसे पूरा ही डेप्रिसिएशन हो जाता है अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो। Yes, sir. पूरा ही है। अगर मैं आपसे कहूं फिक्स्ड एसेट की सेल कर दी गई, अगर मैं आपसे कहूं फिक्स्ड एसेट बेच दिया, तब क्या एंट्री करोगे? रिवर्स एंट्री होगी कैश। पहले आप कहोगे कि सर ये तो बता दो केस कौन सा है। 4 केस बनते हैं इस केस में, 4 केस बनते हैं सेल के केस में जब सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट होती है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं कर रहे और एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी मेंटेन नहीं कर रहे। एडी का मतलब एसेट डिस्पोजल। आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी नहीं बनाते हैं, आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी नहीं बनाते हैं। इस केस में एक सिंपल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। सर ये एसेट डिस्पोजल क्या होता है? कई बार कंपनियां एसेट डिस्पोजल अकाउंट बना लेती हैं अलग से और जितने का एसेट बेचा, जितने का खरीदा था, उस पर आज तक का डेप्रिसिएशन, उस पर प्रॉफिट, उस पर लॉस, वो सभी रिकॉर्डिंग एक सेपरेट अकाउंट में करना चाहती हैं, तब वो एसेट डिस्पोजल अकाउंट ओपन करती हैं। लेकिन जो कंपनियां ये सारी चर्चा फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ही कर लेना चाहती हैं कि कितने का खरीदा, कितने का बेचा, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, वो एसेट डिस्पोजल मेंटेन नहीं करती हैं। ओके सर। सर तो हमें ये भी पता चल गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कब बनाती है कंपनी? जब वो अपनी फिक्स्ड एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट को एज इट इज शो रहने देना चाहती है बैलेंस शीट में। और सर हमें ये भी पता चल गया एसेट डिस्पोजल कब बनाते हैं? जब सेल वैल्यू और उस पर होने वाले प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन एक सेपरेट अकाउंट में करना चाहती है कंपनी। तो ये कंप्लीटली कंपनी की चॉइस पर डिपेंड है कि वो प्रोविजन बनाना चाहती है या नहीं, एसेट डिस्पोजल बनाना चाहती है या नहीं। क्योंकि आपकी कंपनी एसेट डिस्पोजल नहीं बनाना चाहती तो सेल की एंट्री फिक्स्ड एसेट अकाउंट के थ्रू ही हो जाएगी। ओके सर। सर सेकंड केस क्या बनेगा? सेकंड केस बनेगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाती है कंपनी, एसेट डिस्पोजल नहीं बनाती है। इस केस में क्या होगा सर? इस केस में जितना भी डेप्रिसिएशन आज तक उस मशीनरी पर लग चुका है, क्रेडिट हो चुका है, ये देखिए जितना भी डेप्रिसिएशन सेल जो आपने फिक्स्ड एसेट कर दिया है उस पर आज तक जितना भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्रेडिट हो चुका है उसे डेबिट करके फिक्स्ड एसेट अकाउंट में डाल देंगे और फिर यही एंट्री करेंगे पैसा रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। सर थोड़ा सा बता दो एक बार, थोड़ा सा। ओके, जब कंपनी प्रोविजन नहीं बनाती तब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर देती है। जब कंपनी प्रोविजन बनाती है तब भी उसे ये काम तो करना ही करना है, बैंक टू फिक्स्ड एसेट। लेकिन क्योंकि कंपनी ने प्रोविजन बनाया था इसलिए उसने पहले एंट्री करते टाइम ये एंट्री की थी, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी फिक्स्ड एसेट को डेप्रिशिएट नहीं किया था तो अब पहले फिक्स्ड एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे उसके बाद उसे बेचेंगे। डेप्रिशिएट नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है एक्चुअली। जब आप उसे डेप्रिशिएट कर देंगे फिक्स्ड एसेट को तब आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी। उसके बाद आप ये देखोगे कि सेल वैल्यू कितनी है, तब जाके आपको प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा। इसलिए प्रोविजन जब बनाते हैं तो पहले उस प्रोविजन को फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है, उसके बाद सेल की एंट्री करते हो आप। ओके, इससे डिटेल में नहीं जा सकते वरना फिर हम डेप्रिसिएशन में घुस जाएंगे। और ये भी मैं एक्स्ट्रा ही करा रहा हूँ एक्चुअल पूछूं तो आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार रिवीजन जरूरी है। अगर मैं छोड़ भी दूं तब भी ये आपका काम बनता है, डेप्रिसिएशन आना चाहिए। स्टिल कोई बात नहीं, नुकसान नहीं होना चाहिए। थर्ड केस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाते हैं, एसेट डिस्पोजल बनाते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाते, एसेट डिस्पोजल बनाते हैं। इस केस में क्या करेंगे? एसेट डिस्पोजल बनाएंगे, पहले तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट को जन्म देंगे, यस सर। फिर मशीनरी को, फिक्स्ड एसेट को उसमें ट्रांसफर कर देंगे, यस सर। फिक्स्ड एसेट को उसमें ट्रांसफर कर दिया,
फिर उसके बाद बेचकर जो पैसा आया वो भी एसेट डिस्पोजल में ही रिकॉर्ड करेंगे। एसेट डिस्पोजल टू फिक्स्ड एसेट, बैंक टू एसेट डिस्पोजल, ये एंट्री होगी। सर उसके बाद फोर्थ केस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बनाते हैं, एसेट डिस्पोजल भी बनाते हैं। ओहो, तब क्या करेंगे? सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे फिक्स्ड एसेट अकाउंट में। राइट, राइट बोलिए, राइट। राइट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यस या नो बोलो, जो भी आपका मन कह रहा है फटाफट से। अरे बोलो भाई प्लीज। यस सर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। अरे एसेट डिस्पोजल अकाउंट ओपन करने का मतलब ये हो गया कि एसेट और उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन सारी चीजें अब एसेट डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू की जाएंगी, पूरा रिकॉर्ड। ओके सर, देन क्या करेंगे? देन एसेट को एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, एसेट डिस्पोजल टू फिक्स्ड एसेट, और फिर उसके बाद बैंक टू एसेट डिस्पोजल, बैंक टू एसेट डिस्पोजल। ये एंट्रीज होंगी आपकी सेल के केस में, जब प्रोविजन भी नहीं बनाते, एसेट डिस्पोजल भी नहीं बनाते, बैंक टू फिक्स्ड एसेट। जब एसेट डिस्पोजल नहीं बनाते पर प्रोविजन बना लेते हैं, तो पहले तो प्रोविजन की वैल्यू से फिक्स्ड एसेट को डेप्रिशिएट करोगे ताकि उसके एक्चुअल वैल्यू पे ला सको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, तब फिर एंट्री करते हो बैंक टू फिक्स्ड एसेट। ओके सर। फिर प्रोविजन नहीं बनाते, एसेट डिस्पोजल बनाते हो, तो एसेट डिस्पोजल में फिक्स्ड एसेट को ट्रांसफर कर देते हो, फिर रिसीव करते हो बैंक में। कितना पैसा आपने रिसीव किया? एसेट डिस्पोजल के थ्रू ही, एसेट की सेल पर। फिर प्रोविजन भी बनाते हो, एसेट डिस्पोजल भी बनाते हो, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ट्रांसफर ना करके एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ही ट्रांसफर करोगे, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन यहीं से होगी अब। फिर फिक्स्ड एसेट को एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर करोगे, एसेट डिस्पोजल टू फिक्स्ड एसेट, फिर बैंक से रिसीव करोगे, बैंक टू एसेट डिस्पोजल। कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर नहीं भी कुछ होता है तो आप ये एंट्रीज लर्न कर लीजिए एक बार के लिए, क्योंकि आपको कोई डेप्रिसिएशन का चैप्टर नहीं पढ़ना है, यहाँ पे प्रूव नहीं करना है कुछ, इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप एंट्रीज याद कर लीजिए, साथ के साथ एंट्री रिवाइज भी कर लेंगे। पहले अभी आगे और नोटिंग कर लेते हैं जो बाकी रह गई है। ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो फिक्स्ड एसेट आपने बेचा, वो बेचकर आपको प्रॉफिट हो गया, क्या एंट्री करोगे? ये बात दो केस पर डिपेंड करेगी। इफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज मेंटेन्ड एंड इफ एसेट डिस्पोजल इज नॉट मेंटेन्ड। अगर एसेट डिस्पोजल मेंटेन करते हो तो क्या करोगे? प्रॉफिट को एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ही क्रेडिट करोगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। जो प्रॉफिट हुआ उसे आपने क्रेडिट कर दिया एसेट डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू। लेकिन अगर आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट ओपन नहीं करते हो तब क्या करोगे? इट मींस आप फिक्स्ड एसेट अकाउंट के थ्रू ही काम कर रहे हो, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ओके सर। अगर लॉस हो रहा है फिक्स्ड एसेट की सेल पर, ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर लॉस हो रहा है तो तब भी दो केस बनेंगे सर। इफ एसेट डिस्पोजल इज मेंटेन्ड, इफ एसेट डिस्पोजल नॉट मेंटेन्ड। अगर एसेट डिस्पोजल मेंटेन्ड है तो एंट्री करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट टू एसेट डिस्पोजल। सर नरेशन तो लिखवा ही नहीं रहे हो किसी भी एंट्री में, क्या करना है नरेशन का? एंट्री करनी है एग्जाम में? बिल्कुल नहीं। कैश फ्लो के क्वेश्चन में अकाउंट बनाना है, वहां पर नरेशन थोड़ी ना करोगे। ओके सर। एसेट डिस्पोजल नॉट मेंटेन्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट टू फिक्स्ड एसेट।
ये एंट्रीज नोट हो जाए तो यस बोलिएगा। Yes, sir. हाँ जी, बोलिए। Yes, sir, लिख लीजिए। पीछे की स्लाइड दिखानी है क्या? भाई आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सर लिख लिया, हो गया, डन। अच्छा लिख लिया, हो गया, डन। बाकी दोनों का भी हो गया। Yes, sir. मिस आपका भी हो गया। यस। ओके, एक बार फटाफट से डेप्रिसिएशन देखेंगे। आपको अच्छे से पता है डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा है उसकी वैल्यू का एलोकेशन ओवर द पीरियड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। 11th में पढ़ते थे आप। तो जब हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, एंट्री करते हैं फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जब हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं तब दो केस बनते हैं। कंपनी ये चाहती है कि उसकी बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट रिड्यूस्ड वैल्यू पर शो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसे, तो वो एंट्री करेगी डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट को रिड्यूस कर देगी। लेकिन कंपनी अगर ये चाहती है कि उसकी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर फिक्स्ड एसेट एक्चुअल वैल्यू पर ही शो हो जितने में उसे खरीदा गया था, तो कंपनी डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड एसेट अकाउंट में क्रेडिट ना करके एक नए अकाउंट में क्रेडिट करेगी और उसका नाम रखेगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके सर, जब आप बेचते हो फिक्स्ड एसेट को तो चार केस बनते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बना रहे, एसेट डिस्पोजल भी नहीं बना रहे। एसेट डिस्पोजल का मतलब होता है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड सभी रिकॉर्ड्स को एक अलग अकाउंट में मेंटेन करना, जिसका नाम है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। और अगर कंपनी सेल से रिलेटेड सभी रिकॉर्ड्स को एक अलग अकाउंट में मेंटेन नहीं करना चाहती तो वो एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन नहीं करेगी, सारी एंट्री पास करेगी कंपनी एसेट अकाउंट के थ्रू ही। उस केस में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, सेल की एंट्री सिंपल। लेकिन अगर कंपनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रही है, एसेट डिस्पोजल नहीं बना रही है, तब आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड एसेट में ट्रांसफर करना पड़ेगा और फिर आप एंट्री करेंगे बैंक टू फिक्स्ड एसेट। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाती कंपनी, एसेट डिस्पोजल बनाती है, उस केस में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड एसेट में ट्रांसफर करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उस केस में एसेट डिस्पोजल अकाउंट को जन्म दोगे, डेबिट करोगे और फिक्स्ड एसेट को उसमें ट्रांसफर कर दोगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। उसके बाद एंट्री जो आप करोगे सेल की, वो एसेट डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू ही करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। फोर्थ केस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी मेंटेन करते हो, एसेट डिस्पोजल भी मेंटेन करते हो। इस केस में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को पहले एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर करोगे, ना कि फिक्स्ड एसेट में। फिर फिक्स्ड एसेट को एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर करोगे, उसके बाद एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। ओके सर। सर क्लास थी कैश फ्लो की, डेप्रिसिएशन की ज्यादा चर्चा होगी, क्या करें, यूज होना ही होना इसका, इसके बिना तो कैश फ्लो अधूरी है, इसे कैश फ्लो की चर्चा ही समझिए। अगर प्रॉफिट हो रहा है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट पर, तो ये बात दो बातों पर डिपेंड करेगी कि एसेट डिस्पोजल आपने मेंटेन किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो फिक्स्ड एसेट के थ्रू पास कर दीजिए, फिक्स्ड एसेट टू पी एंड एल। अगर एसेट डिस्पोजल मेंटेन किया है तो फिर एसेट डिस्पोजल टू पी एंड एल कीजिए। यही लॉस के केस में चर्चा होगी। अगर आपको बातें समझ में आई अभी तक तो यस बोलिए, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। यस सर। बाकी दो, Yes, sir. पंकज भाई, यस सर, ओके ठीक है। एक एक जवाब दीजिए मुझे, आपको कोई साउंड तो नहीं आ रहा मेरे अलावा? साउंड क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके ओके ठीक है।
एक बार बुक में आएंगे, पेज नंबर खोलेंगे, 203 पर आइए, उसके बाद बताता हूँ कहाँ जाना है। पेज नंबर 203 पर आएंगे। यस सर, आ गए हाँ, सर पेज ठीक है नंबर, ठीक है, ओके 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 ओके। सर गुडविल लेकिन ये तो सर अलग सा चैप्टर है। 203 पर अलग सा चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है क्या? यस सर, नो क्या सर, कौन सा चैप्टर है? ठीक है, आपकी बुक में बता रहे इंडेक्स में हैं। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस पेज नंबर पर है, इंडेक्स में देखिए। चलिए एक बार सर बता दीजिए, फिर कल देखते हैं कौन से फाइनेंशियल पेज। स्टेटमेंट सर शुरू हो गई है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, आप यहीं नोटिंग में ही आइए, हम नोटिंग में ही कर लेते हैं, बुक की हेल्प नहीं चाहिए अभी सर हमें, कोई बात नहीं। 152 सर 150 से है सर, ठीक है, हम इस इश्यू को 150 सॉर्ट पेज करते नंबर से। हैं। ओके थैंक यू। इस इश्यू को सॉर्ट करेंगे तभी, अभी आप ओके वापस आ जाइए अपनी नोटिंग पर, यहीं पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई यस बात यस, नहीं, वापस आ जाइए। कल देखते हैं, यहाँ पर यहीं पर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखिए एग्जांपल 2010 2011 plant and machinery 10 lakh 12 lakh, depreciation is to be charged at the rate 10% per annum on WDV basis. It is the policy of the company. It is the policy of the company to maintain provision for depreciation account. Company do not maintain asset disposal account. Company do not maintain asset disposal account. A part of the machine, पार्ट मत लिखिए, मशीन लिखिए खाली, द मशीन लिखिए खाली, द मशीन was sold at a profit of 10%. Prepare plant and machinery account. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो मिक्स क्वेश्चन होता है, जहां पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, वहां पर 99% आपको प्लांट मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ता है। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन कुछ इसी तरीके से गिवन होती है। ओके आइए जरा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे जरा। कौन से साल के लिए बना रहे हैं? हम बना रहे हैं इसको फॉर द ईयर एंडेड 2011। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये जो पार्ट ऑफ आपने काटा था इसे लिख लीजिए, फिर से लिख लीजिए, वरना ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन की हेल्प नहीं है, मैं अभी क्वेश्चन ड्राफ्ट कर रहा हूँ लाइव आपके सामने, इसलिए थोड़ा सा इशू हो रहा है।
क्योंकि हम बुक की हेल्प नहीं ले पाए थे इसलिए। कोई बात नहीं, ए पार्ट ऑफ लिख लीजिए आप। A part of the machine was sold at a profit of 10%, costing 2 lakh rupees. Costing 2 lakh rupees. Costing का स्लैश लगा के WDV लिख लीजिएगा। कॉस्टिंग का स्लैश लगा के WDV लिख लीजिएगा। अब जरा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस बताइए, ओपनिंग बैलेंस कितना है? यस सर। ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख टू बैलेंस BD 10 लाख रुपीस। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आपको दिख रहा है 12 लाख रुपीस, तो यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD 12 लाख रुपीस, बाय बैलेंस CD 12 लाख रुपीस। उसके बाद कह रहे हैं डेप्रिसिएशन is to be charged at 10% per annum on WDV basis। जो डेप्रिसिएशन आप लगाते हैं वो 10% लगाते हैं, जो आपकी वैल्यू WDV रिटर्न डाउन वैल्यू जो होती है उस पर। तो आपकी वैल्यू है 10 लाख, इस पर आप 10% लगाएंगे। लेकिन इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कंपनी जो डेप्रिसिएशन की एंट्री करती है वो ये करती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 लाख 1 लाख 10 लाख का 10%। तो क्या ये एंट्री प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में कहीं आएगी? नो, ना प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा, ना प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा। डेप्रिसिएशन की एंट्री यहाँ नहीं आएगी। कंपनी डू नॉट मेंटेन एसेट डिस्पोजल, एसेट डिस्पोजल भी मेंटेन नहीं करती कंपनी। पार्ट कौन सा केस हो गया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करती है, एसेट डिस्पोजल मेंटेन नहीं करती, ये केस हो गया। पार्ट ऑफ द मशीन जिसकी WDV 2 लाख थी वो सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, उसे आपने 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। तो एंट्री बोलिए क्या होगी? सबसे पहले तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, ये एंट्री पास करेंगे आप। इस मशीनरी पर आज तक का जो डेप्रिसिएशन था वो 2 लाख कॉस्ट था। WDV में आपको बता देता हूं, WDV में लिखेंगे आप, स्लैश लगा के WDV लिखा था। WDV है इसकी 1,80,000। तो मुझे बताइए इस पर अब तक का डेप्रिसिएशन कितना है? 2 लाख की कॉस्ट वाली मशीनरी की WDV रह गई 180, कितना डेप्रिसिएशन हो गया अब तक का? 20,000। सबसे पहले अब तक का डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, तो यहां एंट्री आ जाएगी बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 20,000। फिर उसके बाद क्या करेंगे? एसेट डिस्पोजल तो मेंटेन करते नहीं है, एंट्री करेंगे बैंक टू प्लांट एंड मशीनरी, बैंक टू प्लांट एंड मशीनरी, यहां लिखेंगे बाय बैंक। 180 की आपकी WDV थी, उसे आपने 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, 18,000 के प्रॉफिट पर, यानी यहां आ जाएगा 1,98,000। और जो प्रॉफिट होता है उसकी क्या एंट्री करते हैं हम जब एसेट डिस्पोजल नहीं बनाते? 18,000 के प्रॉफिट की क्या एंट्री करेंगे जब एसेट डिस्पोजल नहीं बनाते? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये एंट्री करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्लांट मशीनरी 18,000। अब जरा बैलेंस बताएंगे, बैलेंस बताएंगे, बैलेंसिंग फिगर इस साइड कितना बच रहा है? $4 लाख बच रहा है क्या? 4 लाख बच रहा है क्या? हाँ जी। ये किस नाम से आएगा? टू बैंक ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, मतलब कि परचेज। जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है उतना आपने परचेज कर लिया होगा। 10 लाख का आपके पास ओपनिंग बैलेंस था, जिसमें से
2 लाख की मशीनरी आपने बेच दी थी, 2 लाख की ये मशीनरी आपने बेच दी थी, बची 8 लाख की। 8 लाख की मशीनरी बढ़ के 12 की कैसे हो जाएगी? जब आप 4 लाख की और परचेज कर लोगे। तो आप ये याद रखिएगा, आपको यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो टू बैंक आएगा, यानी आपने ये परचेज किया होगा। ठीक है सर, इस अकाउंट का यूज क्या होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में? क्या होगा, आप यहाँ पर जो ये वैल्यू आ रही है टू बैंक में, इसे पुट करेंगे परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी ब्रैकेट लगा करके, और ये जो वैल्यू आ रही है इसे लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट मशीनरी विदाउट ब्रैकेट्स 1,98,000। तो जो आपका एग्जांपल था ना इन्वेस्टिंग वाला, उसमें तो सीधा सीधा दे रखा था कि लैंड एंड बिल्डिंग बेच दिया इतने में, 10 लाख में, खरीद लिया इतने में, बेच दिया इतने में। क्वेश्चन आपको इतनी सीधी सीधी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, वो इंफॉर्मेशन आपको घुमा करके देगा इस तरीके से जैसे इस एग्जांपल में है। तो आपको फिर अकाउंट बनाने की मदद की जरूरत पड़ेगी, अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर आप अकाउंट बनाएंगे तब ये इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि परचेज पर कितना पैसा गया है और सेल पर कितना पैसा आया है, तब उसको आप इन्वेस्टिंग में पुट करेंगे। तो ये आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एज अ वर्किंग नोट प्रिपेयर होगा। ठीक है, यस सर। बाकी 2 लोग भी बोलिए यस सर, फिर गुड बाय करते हैं। नेक्स्ट क्लास में Yes, sir. मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय। ओके सर सर। एक मिनट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी।